Hello students, this is Professor Vivek Tiwari from Government T. Raghavendra Rao, PG Science College, Bilaspur. This is my second lecture on database connectivity of Visual Basic, and in this lecture we're going to learn about the fundamentals of Microsoft Edu Data Control. Basically this topic includes in 5th unit of Programming in Visual Basic subject, and which is in 3rd year of BCom Computer Application. So in my first lecture on this lecture series, we will learn about the fundamentals of data source communication. That means what are the data source, what are the database, and what are the different options available in Visual Basic to connect with our database. Now in today's lecture, in this lecture, we're going to explore the one of that connectivity methodology for database connectivity. So basically in this lecture we will learn about the Microsoft Access database and data access using Edu Data Control. So let's start the concept. First of all, you have to create your database. To create your database, you have to visit Microsoft Office once and go to software Microsoft Access of your Microsoft Office package. Create one blank database with name employee DB. You have to create one word database with name employee DB. Now create table EMP inside that employee DB database with the following field. You have to create the employee database, and inside that employee DB you have to create one table named EMP, and you have to create these 4 fields. The first is the EMP number field with number data type. Second is ename field with text data type. Third one is a salary field with again number data type, and job field for text field. That means we are going to create information about the any employee in an organization. For that we have created the employee DB as an database, and I am created one table EMP inside that employee DB to understand the concept. So we are ready with our table, and these are the table looks like in the Microsoft Access. The first one is the employee number field that I have told you of number type, that is unique number of employee. This stored of unique number of employee. The second is the ename field which store the name of employee. This is text format. Salary, the salary of the employee which is in number format, and the job obviously it is in text format. So put some information, some records on that EMP table. I have created the record like that. 101 is the employee number for Mahesh, and Mahesh salary is 10,000 and its job is color. Like this you have to store some more records for EMP table. You can create as many as record you want. It will help you to understand the concept better. That means first you have to create one database, create one table inside those database, and put some records on that table. So we are ready with the concept. Now go to the Visual Studio, open Visual Studio, then create one standard exe project and design the form as following. चूँकि आप 5वां यूनिट पढ़ रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको फॉर्म्स के बेसिक्स, कंट्रोल के बेसिक पता है. सो आप एक फॉर्म क्रिएट कर लीजिए. फॉर्म के अंदर आप कुछ लेबल्स क्रिएट करिए. यहाँ पे मैंने 4 लेबल लिए हैं, लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3 एंड लेबल 4. सेट द कैप्शन प्रॉपर्टी ऑफ दैट लेबल एज एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड जॉब. नाउ create 4 text boxes, text 1, text 2, text 3 and text 4 to enter the value of that employee number, employee name, salary and job correspondingly. Now create array of buttons, not create separate button, create array of button. ये क्यों है मैं आपको बाद में फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा. आपको array of button क्रिएट करना है. तो यहाँ पे मैंने 8 बटन लिए हैं. पहला बटन फर्स्ट के लिए, दूसरा बटन लास्ट के लिए, तीसरा नेक्स्ट के लिए, चौथा प्रीवियस के लिए, 5वां ऐड करने के लिए, 6वां एडिट करने के लिए, 7वां डिलीट करने के लिए और 8वां सेव करने के लिए. तो ये 8 बटन मैंने लिए हैं और ये एरे ऑफ बटन है. दैट मीन्स एरे ऑफ बटन क्रिएट करने के लिए आप कोई भी एक बटन क्रिएट करिए. मान लीजिए वो बटन था फर्स्ट, और उसको कॉपी करके पेस्ट करते जाइए. मतलब इन सारे बटन का नाम एक ही है लेकिन उसकी इंडेक्स वैल्यू अलग अलग है, इसीलिए इसको बोलते हैं एरे ऑफ बटन्स.
तो ये हमने इस तरीके से हमने फॉर्म डिज़ाइन कर लिया है। अब आपको करना है सबसे इम्पॉर्टेंट काम कि एडियो डाटा कंट्रोल को अपने टूल बॉक्स में लेके आना है। फॉर दैट पर्पस यू हैव टू क्लिक Ctrl+T to open component option. To open component option you have to press Ctrl+T in keyboard, and this window will appear when you click Ctrl+T, that is the component wizard, and that component wizard you have to select Microsoft ADIO Data Control 6.0 OLEDB. You have to select this one, Microsoft ADIO Data Control 6.0. Now click on OK. When you click on the OK, you will found a new control ADIO DC on toolbox. You have to find new control on ADIO DC toolbox. Drag it on your form. आप अपने फॉर्म पे उसको ड्रैग कर लीजिए। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे आपको एक नया कंट्रोल आपके फॉर्म पे मिल जाएगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ विजुअल बेसिक पे। सबसे पहले विजुअल बेसिक को ओपन करिए, यहाँ तक हम पहले समझते हैं। एक स्टैंडर्ड EXE प्रोजेक्ट आप ओपन कर लीजिए। फॉर्म को आपको जैसे डिज़ाइन करना है आप डिज़ाइन कर लीजिए। यहाँ मैं आपको फॉर्म डिज़ाइन करके नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में जो भी कंट्रोल दिख रहे हैं उसमें ADIO DC कंट्रोल, ये टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स में हमारे पास अभी ADIO DC कंट्रोल नहीं आए हैं। इसको ओपन करने के लिए हमको क्या करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि Ctrl+T प्रेस करेंगे। Ctrl+T प्रेस करेंगे, जैसे ही Ctrl+T आप प्रेस करते हैं आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ADIO डाटा कंट्रोल ओपन हो जाता है। ओपन हो जाने के बाद इसमें अप्लाई करिए और क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में ये आपके पास ADIO डाटा कंट्रोल, ADIO DC डाटा कंट्रोल आ चुका है। आप इसको सेलेक्ट करें और आपके फॉर्म पे आप इसको ड्रैग कर दीजिए। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने डिज़ाइनिंग पोर्शन किया हुआ है, तो यहाँ पे आप आ गए हैं ADIO DC डेटा कंट्रोल में। अब वापस हम अपने प्रेजेंटेशन में चलते हैं ताकि आप इस चीज़ को समझ सके। फिर से डेटाबेस कनेक्टिविटी में हम गए। अब हमको क्या करना है, राइट क्लिक करना है ADIO DC 1 पे। ADIO DC की प्रॉपर्टीज़ में जानी है और इनसाइड द जनरल टैब देयर इज़ वन प्रॉपर्टी, यूज़ कनेक्शन स्ट्रिंग। आपने जो कनेक्शन स्ट्रिंग वो आपसे पूछ रहा है कनेक्शन स्ट्रिंग के बारे में। अब चलिए देखते हैं। हम अपने विजुअल बेसिक जो हमने क्रिएट किया था हम उस कनेक्शन स्ट्रिंग में चलते हैं। जैसे ये हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करिए। प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करेंगे आता है यूज़ कनेक्शन स्ट्रिंग ऑप्शन। बिल्ड ऑप्शन पे क्लिक करिए। बिल्ड ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे you have to set Microsoft Z OLEDB provider as your connection string. Now click on the next. It will ask for select or enter database. फिर से इसको देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे राइट क्लिक पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन पूछ रहे हैं आपसे आपको कौन सा प्रोवाइडर चाहिए। यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोवाइडर्स है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोवाइडर्स आपको दिख रहे होंगे। माइक्रोसॉफ्ट Z 3.5 OLEDB प्रोवाइडर, 4.0 प्रोवाइडर, DB प्रोवाइडर पर डेटा माइनिंग, बहुत सारे ऑप्शंस है। ओरेकल के लिए प्रोवाइडर है, SQL सर्वर के लिए प्रोवाइडर है, MS डेटा शेप के लिए प्रोवाइडर है। ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। आपको सेलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट Z OLEDB प्रोवाइडर। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट किए, फिर हम कनेक्शन टैब में आ गए। कनेक्शन टैब में आपको सेलेक्ट करना है डेटाबेस का नाम। अब आपको डाटाबेस का नाम सेलेक्ट करना है। आप वहाँ जाइए जहाँ पे आपने एम्प्लॉय DB डाटाबेस को स्टोर किया था। एम्प्लॉय DB डाटाबेस को सेलेक्ट कर लीजिए और इसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद इस विंडो के लोअर राइट साइड में देखिए टेस्ट कनेक्शन ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इस ऑप्शन को आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे स्क्रीन पे मैसेज आता है टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड। इसका मतलब है आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। उसके बाद टेस्ट कनेक्शन होने के बाद आप ओके पे क्लिक कर लीजिए। फिर आप ओके पे, जैसे अब यहाँ पे आपका कनेक्शन स्ट्रिंग फॉर्म हो चुका है डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिकॉर्ड सोर्स टैब का। प्रॉपर्टीज पेज में ही हमने जनरल को एक्सप्लोर किया। जनरल ऑप्शन में जाके हमने एक्सप्लोर किया था। सेकंड ऑप्शन हमारा है रिकॉर्ड सोर्स। हम रिकॉर्ड सोर्स को क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड सोर्स को सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन वो होता है कमांड टाइप का। द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑफ कमांड टाइप। कमांड टाइप में 4 ऑप्शन है। पहले आपको सेलेक्ट करना है ADCMD टेबल। यहाँ पे आप ADCMD टेबल सेलेक्ट कर लीजिए।
जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे के ऑप्शन टेबल पे आप जाके एम्प्लॉय को आप सेलेक्ट कर लिए। एम्प्लॉय को आप जैसे सेलेक्ट करोगे उसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक करें। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपने ओके करना है, दैट्स इट। अब आप कॉन्फ़िगर्ड हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब आप कॉन्फ़िगर्ड हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि एडीओ डीसी डाटाबेस को कैसे आपको एक्सप्लोर करना है। तो ये मैंने यहाँ पे फॉर्म डिज़ाइन नहीं किया था, आपको सिर्फ एडीओ डीसी बताया। मैंने पहले से आपके लिए फॉर्म डिज़ाइन करके रखा हुआ है। हम उस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट जहाँ मैंने स्टोर किया है मैं वहाँ जाके फाइल को ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के लिए ओपन पे क्लिक करें, फाइल मेनू में जाके मैंने ये प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया। ये फॉर्म मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, देखिए ये जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको ऐसा फॉर्म डिज़ाइन करना है। तो एम्प्लॉई नंबर लेबल है, एम्प्लॉई नेम लेबल है, सैलरी लेबल है, जॉब लेबल है, ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। और यहाँ पे मैंने बटन्स डिज़ाइन किए हुए हैं। और ये एडीओडीसी कंट्रोल को मैंने लिया है। एडीओडीसी कंट्रोल के प्रॉपर्टीज विंडो में जाके देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग भी फॉर्म हुआ है। रिकॉर्ड सोर्स भी हमने सीएमडी टेबल रखा है। टेबल हमारा एम्प्लॉय सेलेक्टेड है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अब इस फॉर्म को रन करते हैं। अभी हम इस बटन की कोडिंग पे नहीं जाते, हम इस फॉर्म को रन करते हैं। जब हम इस फॉर्म को रन करते हैं, अभी हमारा दूसरा फॉर्म स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में सेट है। इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं। प्रोजेक्ट 1 की प्रॉपर्टीज़ में जाके स्टार्टअप ऑब्जेक्ट को हम कर लेते हैं फॉर्म 1। अब इस फॉर्म को हम जाके रन करते हैं। जैसे हम इस फॉर्म को रन करेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके वैल्यूज़ हैं ये स्क्रीन पे आने लगे हैं। लेकिन ये स्क्रीन पे वैल्यू क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्स की उस फील्ड के साथ मैपिंग की हुई है। अब टेक्स्ट बॉक्स की फील्ड के साथ मैपिंग कैसे करते हैं? उसके लिए वापस से आप टेक्स्ट बॉक्स में जाइए, टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी में जाइए। टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी में आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेटा सोर्स। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डेटा सोर्स। इस डेटा सोर्स ऑप्शन में जाना है और उसको सेट करना है ADODC1। सारे टेक्स्ट बॉक्स, जो चारों टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास है, उसकी डेटा सोर्स प्रॉपर्टी में जाइए और उसको सेट कर दीजिए ADODC1। अब पहले टेक्स्ट बॉक्स जो कि एम्प्लॉय नंबर के लिए है, उसकी डेटा फील्ड प्रॉपर्टी में ये पहले हमने डेटा सोर्स को सेट कर दिया ADODC1। फिर आप डेटा फील्ड ऑप्शन में जाइए तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी और जॉब। जो टेबल हमने क्रिएट किया था वो टेबल। तो यहाँ पे आप इसको एम्प्लॉय नंबर सेलेक्ट कर दीजिए। उसी तरीके से दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में जाइए, इसकी डेटा सोर्स प्रॉपर्टी को आपको सेट करना है ADODC1 और डेटा फील्ड प्रॉपर्टी को सेट करना है एम्प्लॉय नेम के लिए। तीसरे प्रॉपर्टी में जाइए, इसके डेटा फील्ड प्रॉपर्टी को सेट कर लीजिए। चौथे की डाटा फील्ड प्रॉपर्टी को आप सेट करके इसको जॉब कर दीजिए। मतलब हमने टेक्स्ट बॉक्स को अपने कंट्रोल से बाइंड कर दिया है। अब इस प्रोग्राम को जैसे हम रन करते हैं, रन करने पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे स्क्रीन पे जो डेटाबेस की जो वैल्यू है वो स्क्रीन पे फ्लैश करने लगती है। जैसे यहाँ पे देखिए जो वैल्यू मैंने स्टोर किया था 101 महेश 10,000 क्लर्क यहाँ पे शो कर रहा है। अब यहाँ नीचे ADODC प्रॉपर्टी में जो बटन है वो है फर्स्ट का, प्रीवियस का, नेक्स्ट का और लास्ट का। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देखिए टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस तरीके से हम अपने ADODC कंट्रोल के थ्रू डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर सकते हैं। इस तरह हमने देखा कि किस तरीके से ADODC के थ्रू आप डाटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने बटन पे कोड कुछ भी नहीं किया है, मतलब बटन के क्लिक पे क्या होगा इस पर हमने कुछ भी नहीं किया है। इसके बारे में हम जानेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि हम किस तरीके से ADODC के थ्रू अपने डेटाबेस को अपने विजुअल बेसिक के फॉर्म से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।